Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. You can also follow us on Facebook page, Instagram or Telegram group for more updates. For study material and live classes, you can contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set question bank, quick revision note, that is the combined or individual basis. It is also in the combined and individual basis. For that you can mail us, and you can also contact us or WhatsApp number, that is the 7426888640. So you can WhatsApp on that number for these queries. Today we will start with the dyes. As we all know that textile itself a very huge subject and very huge topic, so we will cover in a different part. This is part 1. Today we will only discuss about the terminologies that is related to the dye, because it is seen that previous year exam question paper, lots of questions are asked from the terminologies part, and the students are not aware about these things, because these are the some basics. So you have to clear each and everything, basics plus advanced or plus applicable questions, because nobody knows that ki from that portion they are going to be asked the question. So today we will discuss about the terminologies that is the especially related with the dye. Okay, so first one, that is the auxochrome. What is the auxochrome? It is a intensify the hue of the dye. As you all know that in our previous video where we will discuss about the elements and like that, तो उसमें हमने बताया है आपको कि hue क्या होता है, tint क्या, shade क्या होता है. तो from that video you can see that these things in detail. So what is the auxochrome? Auxochrome is that intensify the hue of the dye molecules color एंड मेक्स द डाई मॉलिक्यूल सॉल्यूबल इन वाटर. सो ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो दो होते हैं. पहली चीज़ तो ये होती है कि ये ह्यू को इंटेंसीफाई करते हैं, मतलब जो डाई मॉलिक्यूल्स के कलर होते हैं उनको इंटेंसीफाई करते हैं, उनके ह्यू को इंटेंसीफाई करते हैं. एंड सेकेंड वन, दैट इज़ द मेक्स डाई मॉलिक्यूल सॉल्यूबल इन वाटर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एनी क्लॉथ ऑफ any piece of cloth is going to be dyed or will be dyed. That is very important. The dye molecules should be soluble in water, or their properties should be matched with the textile fiber or fabric properties, so it can be easily dyed, or the color and all the properties may be stable for the future, and fabric would be the more and more better. सो ये ज़रूरी होता है कि जो भी डाई मॉलिक्यूल या जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग सूटेबल हो और अच्छे से मैच करे. तो दैट इज़ द ऑक्सोक्रोम. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लीडिंग, एज नेम वेरी क्लियर, द कलर लॉस इन वाटर. जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कुछ कलर के कपड़े ऐसे होते हैं, सपोज दैट कि ब्लू इज़ वेरी फेमस इन दैट कंटेक्स्ट, कि जब भी आप कोई डार्क ब्लू, नेवी ब्लू या इस तरह के कॉटन के कपड़े स्पेशली अगर आप लेके आते हैं और जब आप उनको पानी में डिप करते हैं, तो व्हाट वी सी कि उनके जो कलर्स होते हैं वो ब्लीड हो जाते हैं. पानी का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ समटाइम्स इन पिंक, black. So it is also depend upon the type of dye it is used, not for every clothes, not for everyone clothes in cases for that, but normal जो एक normal range के कपड़े होते हैं, we can see that कि जो भी ऐसे colors होते हैं like blue, pink, black, we can say that कि very easily when we firstly dip in the water the color are bleed, मतलब जो कपड़े का कलर होता है वो water में आके मिल जाता है और कपड़े से कलर निकलने लगता है. आफ्टर अ टाइम what we see कि कलर जो है कपड़े का वो फेड हो चुका है, तो वो फेडेड कहलाता है. Now next one, that is the crocking, is a color loss from rubbing or abrasion. Suppose that it is a piece of cloth and you are going to just mix, मतलब आपने उसको हाथ से पकड़ा और ऐसे 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 खूब अच्छे से मतलब वो कर दिया. या एक तो एक तरीका ये भी होता है, और दूसरा ये होता है कि when you dip in very long time, suppose that कि आपने कोई भी अपना piece of cloth या कोई भी अपना कपड़ा for a whole night या for a 2 to 3 days, basically it is
seen most of the people can doing that कि in the night they dip their clothes in the bucket in the detergent powder and like that, and after that in the morning they are rubbing it, especially in context of hard piece of clothes likewise जैसे jeans हो गया, ये जैसी चीज़ें हो गई, तो उसको जब आप सुबह ब्रश से रगड़ते हो या 2-3 घंटे बाद भी अगर आप उसको डिप करके रगड़ते हो, या इवन इमीडिएटली अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इमीडिएटली कपड़े को धुलते हैं और उसको बहुत रगड़ते हैं, चाहे उसको हम हाथ से रगड़े, चाहे उसको हम ब्रश से रगड़े या किसी भी तरह से हम करते हैं, तो उससे जो कलर एब्रेशन से जो कलर ब्लीड होता है, जो कलर लॉस होता है, उस टर्मोलॉजी को हम क्रॉकिंग कहते हैं, रगड़ने से बेसिकली। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लीडिंग एंड क्रॉकिंग। क्रॉकिंग इज़ लाइक कि जो आपका रगड़ने से, रब करने से या घिसड़ने से या एब्रेशन होने से जो लॉस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉकिंग। एंड जो नॉर्मली आप डिप करते हो वाटर में और नॉर्मली कलर छोड़ देता है, नॉर्मली कलर ब्लीड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉकिंग एंड ब्लीडिंग। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ कलर फ्लेयर एंड मेटामेरिज्म। दोनों टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, कलर फेयर भी और मेटामेरिज्म भी। सो व्हाट इज़ द मेटामेरिज्म और कलर फेयर? व्हेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ फैब्रिक आर डाइड। ओके, जब 2 या 2 से अधिक कपड़ों को डाई किया जाता है, पर्टिकुलरली बाय डिफरेंट डायर्स, अलग अलग मतलब डाई के हिसाब से, मतलब डिफरेंट डाइज उसमें यूज़ होती हैं। द कलर्स में बी अपेयर टू मैच इन वन लाइट, डे लाइट, बट विल नॉट मैच इन द अनदर लाइट, इंडेंसेंट लाइट। सपोज दैट 2 कपड़े हैं, व्हेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ फैब्रिक, एक कपड़ा ये हो गया और ये कपड़ा ये हो गया, द कलर्स और उसमें जो डाई है, पर्टिकुलरली जो डाई है वो भी डिफरेंट है, मतलब इसकी डाई जो है वो अलग है और इसकी डाई जो है वो अलग है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है, द कलर में अपेयर मैच इन द वन लाइट। सपोज दैट कि एक डे लाइट यहाँ पे है और एक नाइट लाइट यहाँ पे है, तो व्हाट इज दैट कि इसका कलर और इसका कलर, चूंकि ये कपड़ा भी अलग है और इसकी डाई भी अलग है, बट अगर हम सिर्फ डे लाइट की बात करते हैं तो डे लाइट में ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और ये जो दोनों हैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों जो हैं वो नाइट लाइट में मैच कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कलर फ्लेयर, या इसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। नाउ क्रोमोफोर क्या होता है? इट इज़ द कलर प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल। तो सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द डाई मॉलिक्यूल। ये एक कलर प्रोड्यूसिंग पोर्शन होता है डाई मॉलिक्यूल का, जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। नाउ द अनदर वन, दैट इज़ द डाई। क्या होती है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइज। तो जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसको हम बेसिकली डाई कहते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द डाइड प्रिंटेड फाइबर टेक्सटाइल मटेरियल। तो बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे फैब्रिक में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रिंटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नोन एज अ डाइज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाई एंड प्रिंटिंग। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द डाई प्रोसेस क्या होता है। तो एज वी ऑल नो दैट कि जो डाइंग का प्रोसेस होता है, डाई को कलर करने का प्रोसेस को ही हम डाई प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ द इन्वायरमेंट क्रिएटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाई बाय हॉट वाटर, स्टीम और ड्राई हीट। व्हेन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट प्रोसीजर आर फॉलोइंग फॉर डाइंग, तो दैट इज देयर आर सम बेसिक थिंग्स विच इज़ फॉलोड बाय द डाई प्रोसेस सच एज वाटर, स्टीम या हीट। तो दीज आर सम कॉमन थिंग्स विच इज़ यूज्ड इन द डाई प्रोसेसिंग। So introducing these things in the environment or created these things for the environment known as a dye process. Now what is the dye lot number? Once a color has been selected, it is essential that its formulation kept consistent, so each batch is dyed must have dye lot number. Suppose that ki there are 1 kg of cloth, you can write in number. Okay, so there is 1 kg of and there is also 1 kg of, you have to both, but you have a limited a container or a small container that only contain 1 kg of cloth or 10 piece of cloth like that, and you want to be dye both of the cloth in same color, like you want to be a pink, light pink shade like that. ठीक है, so what you have to do, the pink dye you are going to use, there is a intensity, मतलब like formulation उनका होता है, एक consistency उनकी होती है कि how much dye you are using and how much proportion, or you can use
यूजिंग 2 और मोर डाइज, लाइक आप पिंक भी यूज़ कर रहे हो, आप ब्लैक भी यूज़ कर रहे हो, या आप पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, द प्रोपोर्शन ऑफ द डाई और द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाई, यू हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द क्लोथ्स. सो मे बी आप एक बार में 1 kg कलर कर लिए, जिसमें आपने मान लिया 3:4 का रेशियो रख लिया, 3:4 का आपने पिंक का रख लिया और 5:4 का आपने ब्लैक का रख लिया. सो यू हैव टू मेंटेन फॉर दिस ऑल्सो कि इसका भी जो रेशियो होना चाहिए वो भी 3:4 होना चाहिए और 5:4 होना चाहिए. तो इससे क्या होगा, जो आपका कलर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा. तो बेसिकली डाई लॉट नंबर वो होता है जिसमें जो डाई की कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे सेम कलर में प्रिंट होते हैं. जैसे जो आप हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो एक साथ बल्क में कपड़े आते हैं, या सेम डिज़ाइन सेम कलर के नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस होते हैं. कैसे होते हैं, एक ब्लैक कलर का कुर्ता, मतलब सेम ब्लैक कलर की इंटेंसिटी मेंटेन करना, तो उसके लिए जो उसका डाई का प्रोपोर्शन होता है, डाइस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हर बैच के लिए मेंटेन होनी चाहिए. तो उसके लिए उसका एक नंबर अलॉट होता है जिसको हम कहते हैं डाई लॉट नंबर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरोसेंट डाइज. फ्लोरोसेंट डाइज क्या होती है, ग्लोज अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट. बेसिकली इट इज अंडर फॉर द अल्ट्रा वायलेट लाइट, द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट, यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस थिंग. इट एब्जॉर्ब लाइट एट अ वेव लेंथ, ये वेव लेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एंड रिमिट्स दैट एनर्जी एट अनदर वेव लेंथ, और जो एनर्जी को रिमिट करती है वो दूसरे वेव लेंथ में रिमिट करती है. दीज डाइज आर यूज फॉर सेफ्टी क्लोथिंग टू इंक्रीज द विजिबिलिटी. सो बेसिकली दिस इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्लोथिंग, जो कि विजिबिलिटी को इंक्रीज करती है. नाउ द अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज द माइग्रेशन. व्हाट इज द माइग्रेशन, शिफ्टिंग ऑफ कलर टू द सराउंडिंग एरिया और एन एडजेसेंट सरफेस. तो बेसिकली जब एक कलर को शिफ्ट किया जाता है किसी एक एडजेसेंट सरफेस पे या आपके सराउंडिंग एरिया में, अगर हम क्लोथिंग के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो दैट इज नोन एज अ migration. When we are talking about the pigments, तो pigments क्या होते हैं, pigments is in context of the textile, it is a insoluble color particle that are held to the surface of fabric by binding agents. जो कि जो ये एक पहली बात तो ये insoluble particles होते हैं जो कि fabric के surface पे होते हैं binding agent के थ्रू. their application is simple, quick and economical. तो basically जो pigment होते हैं ये क्या होते हैं, simple भी होते हैं, quick भी होते हैं और economical भी होते हैं. तो this is a some basic concept about the dyeing. तो in the exam the question can be asked to be very simple कि pigment क्या होता है, migration क्या होता है, और they may be asked कि dye lot number क्या होता है, या fluorescent dye क्या होती है, जैसे कलन फ्रेयर या मेटामेरिज्म क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है. तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. मे बी आपको एक टर्मिनोलॉजी वो डाई से दे दे, एक टर्मिनोलॉजी वो आपको फाइबर से दे दे, और एक टर्मिनोलॉजी वो आपको प्रिंटिंग से दे दे, तो और उसको फिर मैच करने के लिए दे दे. सपोज दैट कि उन्होंने एक जगह कलर फ्लेयर दे दिया, एक जगह उन्होंने यार्न काउंट दे दिया या यार्ड दे दिया, इस तरीके से दे दिया, या किसी फाइबर का नाम दे दिया. तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. इफ यू वांट if you have any query, any question, you can write us on the comment box, or also you can mail us, or if you want any kind of a study material and anything else, for that you can also contact us. Our number, that is a WhatsApp number, 7426888640, that is written in the earlier of the slide. So you can go and check there, and in videos there are number are also mentioned, and the in the slides are also number are mentioned. So thank you so much for watching and learning. Keep learning, keep watching.